बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जितने लेक्चर अपलोड हो रहे हैं वीडियोस, ये तमाम बच्चे जो यूट्यूब पे सुनते हैं ख़ुद भी प्रैक्टिस किया करें। अगर किसी वजह से यहाँ नहीं आ सकते एकेडमी में, ख़ुद प्रैक्टिस करें, डाइस पे खड़े होकर लोगों के सामने बोलना सीखें। इंशाल्लाह बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं आएगा। प्रैक्टिस की बात है, इतना मुश्किल नहीं है पब्लिक स्पीकिंग करना, सिर्फ जस्ट ये कि प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आपने करनी। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपने उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी। तो आज सबसे पहले मैं बुलाऊंगा मानसारा के बच्चा अब्दुल्ला। पहले बच्चे टॉपिक बताने आपने वो तो बताएं। Assalamualaikum everyone, I'm Abdullah Faraz and today I'm going to discuss CPEC in my speech. Yeah, first of all the question arises, what is CPEC? What is CPEC? You have to tell. What is CPEC? This is general question, this is not I'm asking China-Pakistan. okay. CPEC is basically China-Pakistan economic corridor, which is a collection of infrastructure which is under construction throughout the beginning of Pakistan in 2013. Yeah. China-Pakistan economic corridor is a framework of regional connectivity. Yeah. It will not only benefit Pakistan and China, it will also have a positive effect on Iran, Afghanistan, Central Asian republics and the regions. Now I'm going to talk about the main purpose of CPEC. The main purpose of CPEC is to improve the lives of Pakistan and peoples of Pakistan and China by building an economic corridor, constructions and people-to-people contact for regional connectivity. The total cost of CPEC is $46 billion and is introduced in 2015. Yeah. The total length of CPEC is 1153 kilometers. And now I'm going to discuss a bit of benefit for Pakistan of CPEC. Then I'm going to quit my speech. The benefit of CPEC for Pakistan is the development of skilled and well-trained manpower. The total of 66% of its work is done, and hopefully the remaining will also done in upcoming 4 to 5 years. And it will be a successful project for both Pakistan and China. Thank you. थैंक यू। गुड जी, नेक्स्ट आएंगे वहाबुद्दीन। अच्छा बोले बच्चा अब्दुल्ला। बहुत अच्छा। पेपर दे दो ना मुझे, वो नोट्स, वो मुझे सारे नोट्स इधर रखते हैं। नोट्स लाए हो, दे दो मुझे। ये आपके नोट्स बनते जा रहे हैं। इसकी पिक्चर इंशाल्लाह मैं अपने ग्रुप में शेयर करूँगा। आपके नोट्स बनते जाएंगे, ठीक है? इधर दे देंगे। चलो जी। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable sir and my dear fellows, Assalamu alaikum. My name is Wahabuddin and I am here to conduct the speech. My topic of my speech is Basha Dam. Basha Dam is a contracted filled gravity dam in the parliamentary stages of construction in the river Indus between Pakistan and Khyber Pakhtunkhwa and Gilgit-Baltistan. It has a height of 272 meter and 892 height. Basha Dam is placed near a place called Basha. Basha Dam will produce 4,800 megawatts of electricity through hydropower. It is planned to have a height of 272 meter with 14 gates involved in it. On 30th May 2020, Pakistan contracted 454 billion contract of signed for the construction of this dam. Leading in this dam, Pakistan had faced a lot of challenges, but the government of Imran Khan in 2021 has financially worked on this dam and make this dam for Pakistan first green bond for Pakistan. Thank you. देखो मुझसे अच्छा बोल रहे हैं आप लोग, ज़बान नहीं बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, मुझसे बेहतर जा रहे हैं माशाल्लाह। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है मोहम्मद जायद। नोट्स दे दें। किधर है? वो दे दें मुझे। नहीं, ये दे दो ना जो लिखा है आपने सब।
दे दो, अंदर से दे दें। Dear student and respected sir, Assalamu alaikum. Today my topic of discussion is the life history of Pir Mir Ali Shah. Pir Mir Ali Shah was born in Golda Sharif, Division Rawalpindi in 1859 and here comes Umraan al-Mubarak, first Umraan al-Mubarak. He was the son of Pir Nazaruddin. He belonged to a very respected family and he was a great scholar. He earned his early education from his father and then he earned Mir Shafi from Chakwan. After that he went to Aligarh and learned there the education from Saifullah Aligarh and और वेयर इज़ शिरीन? उन्होंने इस्लाम की खिदमत के लिए बहुत से काम किए और हमें चाहिए कि हम उनके मज़ार पर जाएं और उनके मज़ार उनका किधर है? मज़ार किस जगह पे है? गोल्डा शरीफ में। गोल्डा इस्लामाबाद में कौन सेक्टर है? जी 11। ठीक है, बैठ जाओ बच्चे, तालियां बजाओ। बाद में ले आना, जब लाऊंगा ना मेरे आप डिनर लाएंगे तो उस टाइम ले आना, ठीक है? अच्छा सा लिख के खूबसूरत सा आपके नोट्स बन रहे हैं इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट जुल करना है, क्लैपिंग कर दो पहले नोट्स दे दें। नीट लिख के लाना है बच्चे, नीट लिख के आपने भी दे देना 7 बजे, ठीक है? चलो स्टार्ट अप। हेलो एवरीवन, रिस्पेक्टेड सर इमरान। टुडे माय टॉपिक गज़वा बदर। गज़वा बदर कब हुआ, उसके मायने क्या हैं? गज़वा बदर 17 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी 13 मार्च को हुआ था। गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी और काफिरों की तादाद 1000 थी। गज़वा बदर में कुरान मजीद में गज़वा बदर को यौम अल फुरक़ान के नाम से यानी फैसले करने वाले पुकारा गया है। गज़वा बदर में मुसलमानों के सामान की तादाद 2 घोड़े, 60 ऊँट और 8 तलवारें थी, जबकि मुश्किल के पास 100 ऊँट, 700 घोड़े और 7 बच्चे लिखना इसलिए कि ऐसे लिखवाते हैं। क्या लिखवाते हैं? ऐसे जब आप जाएंगे तो आप ऐसे लिखवाएंगे। ये ऐसे की प्रैक्टिस भी आपकी हो रही है और साथ आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी हो रही है प्रैक्टिस। तो लिखने की प्रैक्टिस, लिखने के नोट्स आपने अपने बनाने हैं नीट। एक नीट सफ़ा मुझे दे देना है, 2 आपने नीट बनाए, एक नीट उधर एक नीट ये होगा। करंट अफेयर्स के ज़्यादा फोकस करें, करंट अफेयर्स पे अखबार पढ़ें, करंट न्यूज़ सुने, डेली का पता हो, घंटा पहले की भी पता हो अभी क्या हुआ है। जिस तरह आज सबसे बड़ा वाक़या क्या हुआ है? हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। मेजर मुनीब थे और मेजर खुरम, और बाकी नायक का नाम सारा पता होना चाहिए आपको। कितने 6 थे, शहीद हो गए, ठीक है? हेलीकॉप्टर कौन सा था, सारे करंट ये होती है। आज से तो कोई जो मर्ज़ी पूछें, उसकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी पूछें। तो करंट अफेयर्स पे भी आपके अबूर होना चाहिए। हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, ठीक है? इस्लामिक हिस्ट्री पे, इंग्लिश पे, पब्लिक स्पीकिंग, मुकम्मल अपनी तरफ से A to Z प्रिपरेशन करके जाएं। बाकी प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा बच्चे पे कि जी वजह तो आएगी ना, रीज़न बाद में सामने। तो ये कि आप प्रेशर में नहीं होना। एक बात, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटरव्यू में फेल होते हैं। किस वजह से? कन्फ्यूजन की वजह, बहुत टेंशन लेते हैं, डरते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती उनकी। और दूसरी वजह ये फेल होने की, ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे रह जाते हैं। आपने ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, नॉर्मल रहना है, बिल्कुल नेचुरल। जितना नॉर्मल नेचुरल रहेंगे इंशाल्लाह इनिशियल टेस्ट आपका पास हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लास में दुरूद शरीफ पढ़ने में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बियदि कुल्ली मालूम लक जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा आलू।